Okay, students. So now we are going to start a mock interview for our student Ankur, and this mock is for HPCL. So Ankur, tell us about yourself. Sir, my name is Ankur. I'm from Sonipat, Haryana. My father is a retired bank manager and currently enjoying his life with his family. My mother is a housewife. She helps me in every situation of my life, mentally as well as emotionally. I've done my graduation in 2014. I'm currently working as a junior engineer in Chandigarh under Building and Roads Department. Okay, so when did you join this job? Sir, a month ago. Just a month ago. Yes, sir. Okay, before that? Sir, I was preparing for engineering services exam from 2014 to 2019. I was constantly working hard to get selected in engineering services. In 2000, yes, sir. These 6 years you could not qualify the exam, right? Yes, sir. Then why are you applying in HPCL? Why did you apply in HPCL when you were interested in engineering services? Sir, currently the situation of I think engineering services is, I don't think that it is suitable for me because of the less vacancies and the less opportunities. So I think I should look for the other opportunities, and HPCL is one of the topmost organization of the country. So I thought that it will be a better idea to just prepare for HPCL exam. During these 6 years, did you ever try for HPCL earlier? No, sir. Why? Sir, the thing is, in 2017-18, I was able to clear the prelims exam of engineering services. In 2019 also, I was able to clear the mains also. So it was mainly the focus of engineering services in my mind that I tried to just clear the exam. But after 2019, I thought that it is not suitable for me. So in second thought, I thought that HPCL will be the best ever organization which I want to join. Okay, so what went wrong in interviews at engineering services? Sir, I think I may be preparing in a wrong way. So that's why I was not able to clear the exam. Okay. Now you have a government job. Yes, sir. And that is a very good job and in good city. Yes, sir. Okay. So why not to continue this current job? Sir, HPCL is one of the topmost organizations, as I said earlier. So all the opportunities which HPCL will give to me, I think they will be they will be very better than my current job in terms of my career growth, in terms of my salary, in terms of my improvement of my knowledge, and all those other things. I think HPCL will be a better option for me. Okay, so now if you join HPCL, suppose. Yes, sir. Will you again try for engineering services? No, sir, I have totally changed my mind for engineering services, as there are less number of vacancies, and I've taken so much of time in just preparation of this engineering services. So I think that I will never try again for engineering services. Okay. So now what is your short-term goal and long-term goal? Sir, initially, if I will get a chance to join HPCL, then I will gain, for the short term, I think it will be more, my main focus was to gain more knowledge, more skills, and I think more experience. So that will be my first
and the most important goal, important objective, short-term objective. And secondly, if I continue for HPCL for the long term, then I think कि मैं चाहूँगा सर कि मेरे I will be given a responsible position in HPCL. मैं अपने जूनियर्स के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता हूँ सर कि they will start just मेरे की तरह वो भी सर कुछ हार्ड वर्क करें और वो भी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन Okay, हायर करें सर. tell us about your strengths. सर आई एम अ मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड काम पर्सन. मुझे लगता है सर कि मैं किसी भी सिचुएशन में लाइफ के मैं इजीली काम कर सकता हूँ. एज मैंने इतने साल अपने प्रिपरेशन को दिए हैं कि मैंने हर उस सिचुएशन को फेस किया है सर इजीली, जो मैं शायद आगे भी करूँ. तो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग के मुझे लगता है सर कि मैं किसी भी सिचुएशन की लाइफ में काम कर पाऊंगा सर. और आपकी वीकनेस क्या है? वीकनेस सर जहाँ तक मुझे लगता है कि एक तो सोशल लाइफ मेरी बहुत मतलब थोड़ा बहुत अफेक्ट होती है सर कि मेरे इतना वर्क में इन्वॉल्व होने के बाद. और नॉलेज मुझे ऐसे लगता है कि सर आई हैव टू कीप कॉन्स्टेंटली गेन सम नॉलेज एट एवरी डे एवरी फेज ऑफ माय लाइफ. तो मुझे लगता है सर कि शायद मुझे नॉलेज के लिए भी कॉन्स्टेंटली मतलब एक हार्ड वर्क उस अकॉर्डिंगली करना है सर. तो दैट इज आल्सो आई थिंक दैट इज द आल्सो द वीकनेस ऑफ माय. नहीं, ये वीकनेस कैसे हुआ कि मुझे नॉलेज गेन करना है, हार्ड वर्क करना है? सर अभी जितना मेरे पास नॉलेज है आई थिंक दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर व्हाट आई थिंक दैट कि मुझे मेरे पास जितना होना चाहिए था सर वो मुझे लगता है कि हाँ मुझे और भी शायद गेन करना चाहिए. किस सेक्टर में नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं ज्यादा? सर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग कि मुझे एक परफेक्ट पर्सन बनने के लिए मेरे जॉब प्रोफाइल के अंदर, मेरे नेचर के अंदर, और मुझे नहीं लगता सर नॉलेज गेन करने के लिए कि आपको मतलब ड्यूरिंग योर 1 month जॉब विद दिस बिल्डिंग एंड रोड डिपार्टमेंट, व्हाट डिड यू लर्न? सर द वे ऑफ बैलेंसिंग अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, मुझे लगता है सर वो अभी मैं स्टार्टिंग में अभी 1 month में मुझे थोड़ा थोड़ा फील हुआ है कि सर हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. तो वो मुझे लगता है सर वो मैंने अभी गेन करना स्टार्ट किया है कि हाँ कैसे मुझे सारी चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा. ओके, सचिन सर. ओके अंकुर, Yes. आपने आपका ग्रेजुएशन कौन से ईयर में हुआ है? सर 2014 में हुआ है सर. ओके, सो इट्स बीन वेरी लॉन्ग. तो आई गेस आपको आपका आपने बीटेक में करिकुलम में जो प्रोजेक्ट किया होगा वो आपको याद नहीं होगा? सर अ लिटिल बिट आई हैव रिमेंबर्ड दैट थिंग. अच्छा, आपने आपके करिकुलम में कोई ट्रेनिंग करी है? यस सर. आपको किसी ट्रेनिंग तरीके का कोई फील्ड एक्सपीरियंस? नहीं सर, फील्ड एक्सपीरियंस इन लास्ट सेमेस्टर ऑफ आवर हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था सर. इट वाज अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एट दैट टाइम. अच्छा, tell me what is the difference between you and a fresher? Where do you stand? Should we consider you as an experienced like civil engineer or a fresher civil engineer? Sir, I think I'm a fresher with the experience. You How's that? can just say me that I'm a fresher with experience. जैसे एक fresher को आप he have the that courage कि भाई वो कोई भी हर पार्ट में वो एक एक्टिव उसका रोल होता है सर. तो बट मेरे पास वो एक्सपीरियंस भी है सर कि हाँ किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है. आई कैन आल्सो हैंडल दैट थिंग आल्सो इन अ वेरी गुड मैनर. और फ्रेशर जितना जो एक्टिवनेस होती है सर हर चीज में आपको पार्ट लेने का, वो भी सर मेरे पास है. Okay. Ankur, what was your आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया है, what is the best rank that you have got? सर एक्चुअली वो इंटरव्यू से पहले मेन मतलब इंटरव्यू क्लियर होने से पहले सर वो रैंक वगैरह वहां पर नहीं आता है सर ऐसा कुछ. अच्छा, गेट में what is the best rank?
सर आई हैव नेवर ट्राइड फॉर गेट वेरी सीरियसली। कभी कभी जैसे मैंने किया है तो, बट उसके उसमें मुझे रैंक का याद नहीं है सर। Okay. Any other exams जो आपने दिए हैं? Like, Sir, I just want to know कि आपने 6 years में what have you done? okay. Sir, I have cleared the my state exams also. Two of them was HPSC as assistant engineer exams. Mhm. Some of just Airport Authority of India junior executive exams. One of them is RPSC assistant engineer exam, and recently I've just cleared Delhi subordinate services exam for the JEE post, and one this HPCL exam, and some of more exams I right now I'm not remembering, but yes, sir, I've tried a lot. तो आपने इन सब में आप सेलेक्ट हुए हैं एंड आपने ज्वाइन नहीं किया है, इज दैट सो? No, sir, I was merit out at the last stage of the some टेल मी all of the exam. ना जिसमें आप सेलेक्ट हुए हैं। नहीं सर, उससे चंडीगढ़ वाले एग्जाम से पहले राइट नाउ वेयर आई एम वर्किंग, इससे पहले सर मैं फाइनल स्टेज तक आते आते आउट हो जाता था। ओके ओके, सो we'll have to go theoretically only. Okay, tell me which is your favorite subject? 2 favorite subjects. Sir, building materials, and the second one is soil mechanics. ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे टिम्बर होता है, यस सर। टिम्बर की सीजनिंग क्यों करनी पड़ती है? सर अगर वो उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वी विल गेट मैनी ऑफ द डिसएडवांटेजेस। उसका कॉस्ट बढ़ेगा सर अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए करेंगे, फिर उसको बर्न करने में भी हमें प्रॉब्लम होगी। जितनी भी एजेंसीज वगैरह हैं सर जो टिम्बर को हार्म कर सकती हैं, वो भी इजीली उस पे जैसे आ सकती हैं। इसके बाद टिम्बर को जैसे कोई डेकोरेटिव अगर आइटम्स हमें अप्लाई करना है तो सर वो भी जैसे उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक वो अगर वो वेट कंडीशन में है। ओके, अच्छा मुझे बताएं, फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए टिम्बर पे कौन सा प्रोसेस किया जाता है? सर बहुत सारे प्रोसेस हैं सर। वन ऑफ देम इज चारिंग प्रोसेस। इसके बाद कुछ हम कुछ केमिकल सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं सर। ओके, yes, sir. अच्छा मुझे बताएं, आपने सर एबल प्रोसेस सुना है? यस सर, आई हैव हर्ड अबाउट इट। किस काम आता है ये? दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग द टिम्बर फायर रेजिस्टेंट। ओके, अच्छा सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताएं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और कितने प्रोपोर्शन में होते हैं? सर लाइम, फिर सिलिका, एल्यूमिना। लाइम जो होता है सर वो 62 to 67% होता है। देन सिलिका 17 to 25% होता है। फिर देन एल्यूमिना 3 to 8% होता है सर। ओके, एंड ये लाइम क्या करता है? सर लाइम जो है वो स्ट्रेंथ और साउंडनेस जो है सर उसको प्रोवाइड करता है सर। लाइम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? सर अनसाउंड बना देगा वो सीमेंट को सर। What do you mean by soundness and unsoundness of cement? सर साउंडनेस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी कि वो स्ट्रक्चर कितना ड्यूरेबल है इन टर्म्स ऑफ के क्रैक्स वगैरह जो उसमें डेवलप होंगे सर, तो उसका ड्यूरेबिलिटी एक अकॉर्डिंगली दैट इज नोन एज साउंडनेस। अच्छा, differentiate me between soundness of cement and soundness of brick. So sir, soundness of cement
Sir, exactly, I don't know right now. ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने सॉइल मैकेनिक्स बोला है, मुझे बताएं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सॉइल मैकेनिक्स एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल इंजीनियरिंग, या ये तीनों टर्म सेम होते हैं? सर सेम नहीं होता है तीनों टर्म, बट क्या डिफरेंस है? एग्जैक्ट डिफरेंस मुझे नहीं पता है सर अभी। ओके ओके, टेल मी व्हाट इज पोर वाटर प्रेशर? Sir, pore water pressure is the pressure exerted by the water if it is present in the in soil. जो वाटर जो प्रेशर लगाता है सर, अगर वो किसी भी सॉइल सैंपल में प्रेजेंट है, तो जो पानी जो प्रेशर लगाता है सर सॉइल सॉलिड्स के ऊपर, तो दैट इज नोन एज द पोर प्रेशर। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन लिखें। यस सर। सिग्मा 1 का वैल्यू है 100 किलो पास्कल्स। ओके सर। सिग्मा 3 इज 40 किलो पास्कल्स। ओके सर। ओके, पोर वाटर प्रेशर हम लोग ले लेते हैं 20 किलो पास्कल्स। ओके सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। ओके सर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। कोहेजन को हम ले लेते हैं 0 एंड लेट अस टेक CD टेस्ट। ओके सर। ठीक है, CD टेस्ट ले रहे हैं, मुझे फाई का वैल्यू बताया निकाल। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इक्वेशन लिखते हैं। ओके सर। यस सर, आई कैन शो यू और आप मुझे दिखा दें। आई थिंक थोड़ा इट सा विल आगे नॉट करें, बी मुझे दिख विजिबल। नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा और आगे। Sir, I will tell you हाँ, orally, I think. We will use the equation, sir, sigma 1 is equal to sigma 3 10 square 45 plus 5 by 2 plus 2c 10 45 plus 5 by 2. In that, जो pore pressure की value जो है sir, because consolidated drain test है, तो जो pore pressure है वो dissipate हो चुका होगा sir. तो then sigma 3 value will be reduced to 80. As we have given sigma 1 is equal to 100 kilopascal, so sigma 1 जो है सर वो 80 kilopascal हो जाएगा, और ऐसे ही sigma 3 की वैल्यू है सर वो भी रिड्यूस होकर 20 kilopascal हो जाएगा। तो द फाइनल इक्वेशन एंड C की वैल्यू 0 गिवन है, तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा सर। अगर हम UU टेस्ट करते हैं फिर सर उसमें जो पोर प्रेशर है वो डिसिपेट नहीं होगा, तो द ओरिजिनल वैल्यूज विल बी कंसिडर्ड। 100 kilopascal for the sigma 100 दे रखा है तो उसी को कंसीडर करें। ओके, yes sir. गुड। व्हाट इज बल्किंग ऑफ सैंड? सर इफ वी अगर हमें कोई सैंपल अगर हमारे पास है, एंड व्हेन वी स्टार्ट कंपैक्टिंग दैट सैंपल, या फिर हम उसमें 4 to 5% पानी ऐड करते हैं, then it will result in increase volume of the sample. तो जिसकी वजह से that sample will swell in a very high amount. तो जो वॉल्यूम ऑफ सैंड जो इंक्रीज होगा सर, दैट इज नोन एज द बल्किंग ऑफ सैंड। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सर इन टर्म्स ऑफ वो हमें देखना पड़ेगा सर, कि अगर हम उसको वेट मेजर कर रहे हैं सर, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में अगर मेजर करेंगे सर, तो दैट विल बी आई थिंक डिसएडवांटेजेस फॉर अस। अगर वेट के टर्म्स में अगर हम मेजर करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा सर। ओके, अच्छा मुझे बताएं बैचिंग क्या होता है? So batching is mainly the selection of the measuring of the different components of the material which we will use the materials in construction of the particular item, particular structure. ओके, कितने तरीके की बैचिंग होती है? Sir, volume batching and weight batching. ओके, आपने मिक्सर्स देखे हैं? Yes sir.
कितने तरीके के मिक्सर्स होते हैं? सर मैकेनिकल मिक्सर्स एंड द हैंड मिक्सर्स, तो उसमें भी फिर जैसे हम सडनली जो मैकेनिकल मिक्सर्स है उनको भी सर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर, जैसे पैन मिक्सर्स, ड्रम मिक्सर्स, देन टिल्टिंग एंड नॉन टिल्टिंग मिक्सर्स। ओके, जैसे आपको ये दे रखा है NT 160, यस सर। ठीक है, इसमें NT नॉन टिल्टिंग बता रहा है, 160 क्या बता रहा है? So it is the capacity of the that material which can be mixed in that mixer. 160 यूनिट क्या है, क्या यूनिट है? केजी होता है सर। 160 kg। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि what are the advantages of using steel as a reinforcement in concrete? Sir, first of all, steel is very easily available in market. Secondly, कि इसमें चीप कॉस्ट है सर, इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं है एज कंपेरेटिवली अगर हम कोई और मटेरियल यूज करेंगे। थर्ड, मेन रिइंफोर्समेंट जो अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है कंक्रीट के पास जो नहीं होती है सर, सीमेंट के पास जो नहीं होती है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर हमें प्रोवाइड करना होता है तो वो steel that can be provided with the help of steel. Tensile strength को जो मेन। अच्छा, आपने बोला इसका चीप कॉस्ट होता है, तो Yes, sir. आपको पता है मार्केट प्राइस कितना है स्टील का? आपकी वॉइस म्यूट हो गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, मार्केट प्राइस क्या है? सर नहीं पता है सर अभी। तो आप चीप कैसे बोल सकते हैं? सर एज कंपेरेटिवली जितने भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, अगर स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम का बता दें, एल्यूमिनियम क्या अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है अप्रोक्सीमेट? प्राइस का नहीं पता है सर अभी। ओके, अच्छा ये एडवांटेज हो गए, तो स्टील को यूज करने के डिसएडवांटेज क्या है? सर द मेन डिसएडवांटेज आई थिंक इट इज कोरोजन, कि अगर कोरोजन अगर किसी भी स्ट्रक्चर किसी भी स्टील में अगर होगा देन उसकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर की तो वो बहुत कम हो जाएगी सर। बस यही है। इसके बाद सर उसको जैसे ट्रांसपोर्टेशन करने में काफी जैसे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्टील इज अ हैवी मटेरियल, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगा। फिर उसको अगर हमें एज अ स्ट्रक्चर में अगर हमें उसको बेंडिंग करना है या कुछ करना होगा तो उस चीज के लिए सर हमें एक पर्टिकुलर मतलब कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह चाहिए कि लेबर अगर उसको बेंड कर सके, ये सारी चीजें बताना पड़ेगा उसको। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएं, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों प्रोवाइड करते हैं? सर फैक्टर ऑफ ओके सर, मेन रीजन इज कि किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम यूज करते हैं वी वांट दैट स्ट्रक्चर टू बी वेरी सेफ, कि अगर सेफ्टी अगर किसी स्ट्रक्चर में यूज नहीं है सर तो हम उस स्ट्रक्चर को यूज ही नहीं कर सकते हैं सर। सेकंड रीजन इज के सर दिस इज नॉट द फर्स्ट रीजन, आप तो बोल रहे हैं कि सेफ्टी के लिए हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है, दैट इज ऑब्वियस। यस सर, बट अगर उस स्ट्रक्चर की अगर स्टेबिलिटी अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं सर कि भाई उसमें हम इजीली उसको यूज कर सकें कि तो दैट आई थिंक उसके लिए हम यूज करते हैं कि जितना उस पर लोड आना है सर उससे काफी हमें कम अमाउंट में हम उसको लोड करना चाहते हैं सर, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए in terms of that safety of the structure. Second reason is कि sir yes, I don't remember the other reasons right now sir. Okay अंकुर, ठीक है। अच्छा देखो, इट इज बेटर देन कल वाला जो था उससे अच्छा है। ओके, फार मोर बेटर, बहुत अच्छा है। कुछ जगह जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंडनेस ऑफ सीमेंट एंड साउंडनेस ऑफ ब्रिक,
तो Yes, sir. साउंडनेस ऑफ सीमेंट का मतलब क्या है कि सीमेंट में पानी डालने पे वो कितना स्वेल कर रहा है, Yes, sir. ओके, कितना फूल रहा है, वो उसे हम साउंडनेस ऑफ सीमेंट कहते हैं। और साउंडनेस sir. ऑफ ब्रिक का मतलब आपने दो ईंटें ली, उनको आपस में बजाया, क्या साउंड निकला, मेटेलिक निकला है, किस तरीके का साउंड, Okay, दैट sir. इज साउंडनेस ऑफ ब्रिक। अब आपको देखो ये क्वेश्चन आई डोंट नो कि आपसे पूछा जाए ना पूछा जाए, बट ये ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है कि शुड वी कंसिडर यू एज अ फ्रेशर और एज दिस एक्सपीरियंस्ड, Yes, sir. क्योंकि इट्स बीन लाइक 2014 है तो 7 साल हो गए, Yes, sir. ओके। अब 7 Yes, साल sir. आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो लाइक जो कंपैरिजन होगा वो किसी फ्रेशर के साथ में ही होगा, क्योंकि आपको फील्ड एक्सपीरियंस नहीं, Yes, sir. ओके। Yes, आप sir. उनको ये बोल सकते हो, एक जेन्युइन रीजन ये दिया जा सकता है कि Yes, sir. आई विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेशर ओनली, ओके। Yes, sir. एक्सपीरियंस आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपको Yes, फील्ड sir. एक्सपीरियंस नहीं है, साइट का एक्सपीरियंस नहीं है। Okay, But sir. since I have gone through the subjects for a lot of years and also I have got a very good subject matter knowledge. बहुत अच्छा Okay, subject sir. matter knowledge है, which gives me an extra edge over the freshers who are coming. Yes, Okay, sir. so I have this extra edge कि मैंने इतनी बार subjects पढ़े हैं कि I have Okay, got sir. a very good feel and a very good confidence in the subject matter. अब Okay, उसके sir. बाद आप बोल सकते हो कि like I am very much confident in building material and soil mechanics. Okay, sir. Okay, अब इंटरव्यू को इस डायरेक्शन में ले जा सकते हो। अब आपको सब्जेक्ट वही बोलना है जिसमें आप वाकई में कॉन्फिडेंट, ओके। Okay, sir. ऐसा ना हो कि आप फिर बता ना सको, लाइकवाइज ये तो बहुत अच्छा था। Okay, sir. ऐसा कहीं पे भी कोई इशू नहीं है। जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा ये मैंने पूछा आपसे, ये भी Yes, देखो, sir. अब एक चीज समझो, आप जो जो जवाब देते जाओगे ना उससे अगला अगला क्वेश्चन बनता जाए। जैसे आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाली बात करी थी तो क्वेश्चन बन गया कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों प्रोवाइड करते हैं, ओके। जो भी आप बोलोगे, जो भी बोलोगे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। तो Yes, sir. जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहला तो लोड के लिए लगाते हैं, Okay, ओके। sir. हम मान लो डिजाइन कर रहे हैं 100 किलोन्यूटन के लिए, 150 Mhm. किलोन्यूटन लोड आ गया बाय एनी हाउ, तो Yes, हमें sir. उसके लिए एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए। Yes, sir. दूसरा मटेरियल के लिए, ठीक है सर। साइट पे आना था M25, आते 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 कुछ प्रॉब्लम हो गई, M22 M23 हो गया, M20 हो गया, ठीक है ओके। सर। दूसरी चीज ये मटेरियल। और तीसरा, हम डिजाइन करने के लिए कुछ अजम्पशंस लेते हैं, वो ओके सर। अजम्पशंस रियलिटी में ट्रू नहीं होते। ओके सर। जैसे प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये अजम्पशन रियलिटी में ट्रू नहीं, ओके बट सर। हम इसे मान लेते हैं कि ऐसा होता होगा। तो ऐसे ठीक है जितने सर। भी असम्पशंस लेते हैं, जैसे इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट, ठीक जरूरी है नहीं सर। कि वो कांस्टेंट रहे, है यस ना। सर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसके लिए भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इन तीनों का मिला के एक कॉमन फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलता है, जो आप कंक्रीट के लिए 1.5 पढ़ते हो और स्टील के लिए 1.15, और सर्टेनली फिर ऐसे और भी आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है क्वेश्चंस सर। का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है सर। बस ये ध्यान रखना कि आप जो भी जवाब दोगे अगला क्वेश्चन उसी से बने। सो आई ठीक है। गेस दिस वाज गुड, कल वाले से फार मोर बेटर है, सो जस्ट कीप इट अप। आपका अच्छा, ओके, ठीक है। आपने गेट का रैंक दिया नहीं है ना? यस सर। ठीक है, इट इज गुड, अभी मुझे ठीक लगा, कल से बेटर है। ओके आपका सर। इंटरव्यू कब है? कल ही है सर, एक्चुअली मेरा इंटरव्यू। चलिए ठीक है, इट इज यस गुड। सर। बस ये कि देखो, घबराओ नहीं, ओके सर। दिस इज नॉट द एंड। अगर हो जाता है तो इट्स वेरी गुड, नहीं होता है तो विल लुक फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटी, लेट इट ओके बी। सर। परेशान नहीं होना कि ये चला गया, ये चला गया, कोई बात नहीं, और आते रहेंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो ओके, एग्जाम्स का सर थोड़ा मुझे बताइए कि वैसे तो एग्जाम्स मतलब बहुत बार और भी जैसे एग्जाम्स हो चुके हैं सर, तो मेनली वो बता दूं सर जो मतलब मेन एग्जाम्स हैं। हाँ बोल दो ना। जैसे सर मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया है, आई हैव क्वालिफाइड फॉर लाइक इंटरव्यू आल्सो, इंटरव्यू तक मैं गया हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट स्टेज आई वाज जस्ट लाइक आई वाज नॉट सिलेक्टेड, and this Yes. happened with me 2 times. So I was very frustrated with engineering services that I am doing all my best and still I'm not able to succeed in this. So I tried for other exams also. So I tried for you can say I tried for AIN exam state level. I also qualified Airport Authority of India RPSC exam, and right Yes, now sir. I've got HPCL, which I guess is the best opportunity for me right now. जितने Yes, भी sir. मैंने एग्जाम्स दिए हैं वो सारे जूनियर इंजीनियर के या इस लेवल के हैं, जूनियर Yes, sir. इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर, और HPCL मुझे इससे अच्छा पोस्ट दे रहा है, सो व्हाई नॉट जॉइन दिस एज अ करियर।
Yes, इस तरीके से आपको घुमा के इसको ऐसे डायरेक्शन में ले जाना, ठीक है, बोलना आपको आ जाएगा धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम बट आ जाएगा। ठीक है ओके, सर। उसी Okay, sir. उसी बात को मोल्ड करके बोलना होता है, बात वही है, उसको Yes, अलग sir. तरीके से घुमा के अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना। ठीक है सर। ओके, Okay, sir. सर। अंकुर, देखो Yes, ये sir. आंसर सर ने बता दिया, इसी को फॉलो करो। Yes, sir. बस थोड़ा सा चेहरे पे ना परेशानी नहीं झलकनी चाहिए, Okay, sir. कहीं ना कहीं दिल का दर्द जो वहां पे आ जाता है ना, वो गाना जो है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अच्छा अचीवमेंट है तुम्हारा, जेई की नौकरी बढ़िया निकाल दी है तुमने। Okay, sir. तो फाइनल सिलेक्शन तो डिपेंड करता है कई बार सिचुएशन पे, तुमने एग्जाम निकाले हुए हैं, तो तुम अपने आप में मोटिवेट फील करो और अच्छा फील करो। Okay, sir. Thank you. मतलब बिल्कुल भी ऐसा मन में जो फीलिंग अगर हो ना कहीं कि यार मेरा उसमें नहीं हुआ ईएससी में, तो वो चेहरे पे नजर आनी नहीं चाहिए। चेहरे Okay, पे sir. बिल्कुल हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड, और बिल्कुल मतलब बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो Okay, परफॉर्मेंस तो तुमने ठीक दी है आज, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे आंसर जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे उनको दिमाग में रखो, और मतलब ईमानदारी रखो आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है जैसे तुमने रखी है, ठीक है। कई बार वो इम्प्रेसिव हो जाता है कि बच्चा सही बोल रहा है, जो भी चीज है जेन्युइन, तो वो पॉजिटिव में sir. चला जाता है, ठीक है। और Okay, sir. ये तुमने बताई दिया कि अभी ईएस में तैयारी आगे नहीं करनी है, मना ही कर देना कि अब तो उसमें ज्यादा स्कोप करने नहीं है, ठीक है। और मतलब मैं आगे अपना और टाइम उसमें नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मतलब लाइफ धीरे धीरे बढ़ रही है आगे, तो मैं एक जॉब को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो अगर Okay, sir. एचपीसीएल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मेरे लिए वो मतलब सेटिस्फैक्ट्री और बढ़िया रहेगी, ठीक है सर। ठीक है। बाकी ठीक है सर। एचपीसीएल के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो सारे पढ़ लिए होंगे आपने। हाँ जी सर, कुछ पढ़ लिए थे सर वो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स पढ़ लिए। हाँ जी सर, वो कौन सा यस सर। उनके इग्निशन टेम्परेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा सा ये सब चीजें देख लो, कैलोरीफिक वैल्यूज देख लो कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूल्स की, ठीक है सर। और ठीक है। पॉलिसी ऑफ एचपीसीएल फॉर फ्यूचर, अच्छा ठीक अच्छा। है, उसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लो कि आगे क्या पॉलिसी चल रही है, किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो क्या फ्यूचर है आगे एचपीसीएल का, इसके बारे में बोल सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट उसके ऊपर कंपैरिजन करवा सकते हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन सही है कि आपकी नजर में या नहीं है, ठीक है। तो आप तो उसका इसका क्या आंसर होना चाहिए सर? फिर थोड़ा इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा। प्राइवेटाइजेशन आप बोलो कि सर देखो, अगर कोई पीएसयू अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब पीएसयू है और वो Yes, sir. गवर्नमेंट का उसमें शेयर ज्यादा है और वो प्रॉफिट मेकिंग है, और वो अच्छा, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पीएसयू जो भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो प्रॉफिट मेकिंग हो, मतलब अच्छा ग्रो करे और कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। यस सर। तो अगर कोई ऑलरेडी कर रहा है तो दैट इज ओके, उसका तो जरूरत नहीं है फिर। जो चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो सर उसका तो करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। सर। उसको उसी मोड में हमें आगे और मतलब क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, बस वो देखना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा प्राइवेट सेक्टर ही अच्छा ग्रो करता है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो दो चार। और सर अगर कोई नहीं परफॉर्म कर रहा है अच्छा पीएसयू, मतलब उससे गवर्नमेंट को, वो पूरा गवर्नमेंट के ऊपर ही, सब्सिडी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है, तो फिर उसमें कुछ तो डिसीजन लेने ही होंगे हमें, यस सर। अच्छे तरीके से रनिंग कराने के लिए, ठीक है ना। मतलब लायबिलिटी नहीं बनना चाहिए ना गवर्नमेंट के ऊपर वो। यस सर। तो सर उसके लिए अगर मैनेजमेंट चेंज या प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करके अगर उसकी कंडीशन को सुधारा जा सकता है तो उसमें कोई इशू नहीं है, मेरे को तो लगता, मेरे हिसाब से। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो ग्रो करे चीज और नेशन डेवलपमेंट में वो रोल प्ले करे, ना कि नेशन के ऊपर बोझ बर्डन बन जाए, ठीक है। ठीक है सर। तो मतलब एक बैलेंस अप्रोच हमें चलानी है कंट्री को, हमारा कंट्री जिस तरीके का है, तो यहाँ पे हम सब कुछ प्राइवेटाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत पॉपुलेशन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है यहाँ पे, ठीक है। और अभी हम डेवलपिंग वो हैं, तो लेकिन हमें आगे बढ़ना भी है, तो जिस मोड में भी परफॉर्म अच्छा हम कर सकते हैं उस मोड के हिसाब से हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। और इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके वॉच उसके ऊपर होना चाहिए, मतलब काम के ऊपर, और उसी हिसाब से सारे डिसीजन लेने चाहिए मेरे हिसाब से। ओके सर। ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर दो वहां पे बस।
ठीक है सर। चलो अब क्लियर है ना? यस सर, ठीक है, क्लियर है सर। और बाकी अपने सारे जो क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेंथ, हॉबीज, वीकनेस, इन सब के बारे में पूछेंगे वो, तो उसका आंसर प्रिपेयर करके रखना जो तुमने दिया है। स्ट्रेंथ भी ठीक तुम्हारी है। ठीक है, वीकनेस भी तुमने बताया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है चलो सर। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर।